Students, today we will study about numerical differentiation by using divided difference formula. The divided difference interpolation polynomial fitting the data xi f of xi for I is equal to 0 to 1 to n is given by, as we know that this equation 1, this is interpolation polynomial formula in which f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught, f of x naught, x1, and so on. We can see equation 1. Now we need to find the numerical differentiation by using this polynomial. So for this, first of all, we will differentiate this equation 1 with respect to x. Okay, हम इसको with respect to x differentiate करते हैं. जब हम इसको with respect to x differentiate करेंगे, so you can see in this equation the x naught, x1, and so on, x2, x3, all up to xn, they are all constant. We need just to differentiate with respect to x of equation 1. जब हम इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे, on the left hand side you can see f dash x is equal to, ये first term 0 हो जाएगी, okay, this one into प्लस इसके साथ x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा और x नॉट 0 हो जाएगा, f of x नॉट x1 आ जाएगा हमारे पास as it is, plus you can see here there are two terms. ठीक है, so we will apply product rule जो होता है डेरिवेटिव का, हम उसको अप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, और इसी तरह से सेकंड टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी. प्लस सिमिलरली वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस थर्ड टर्म का भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सो ऑन फॉर n टर्म्स. व्हेन वी विल राइट इट, you can see differentiating of equation 1, it will becomes equation 2. Okay, so this is the first derivative of this equation 1. Now after this, if we need to find the second derivative, अगर हमें इसी का second derivative find out करना है, तो हम क्या करेंगे? If the second derivative is required, okay, if, and we can also see if the derivative f dash x is required at any particular point x is equal to x dash. For example, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, find the derivative at any x point, x में भी any, हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां जहां पे x होगा वहां पे x dash. ओके, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने फाइंड आउट करना होगा तो x को रिप्लेस कर देंगे उस पॉइंट के साथ. क्लियर? सो this is about the first derivative. If we need to find the second derivative, अगर हमें second derivative find out करना है तो हम क्या करेंगे, इसी equation 2 को, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, differentiating equation 2 again with respect to x. इसको दोबारा से, ये जो equation 2 हमारे पास है, इसको दोबारा से हम derivative इसका लेंगे with respect to x. उसी तरह से x के with respect to x हम ले रहे हैं, so x naught, x1, x2 and so on, जितने भी ये point हमारे पास होंगे, ये सारे के सारे हम as a constant consider करेंगे, इनके डेरिवेटिव 0 होंगे. we just need to take the derivative with respect to x. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, it will becomes equation 2. ठीक है, हमारे पास ये जो equation 2 है, इसी का दोबारा से जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, so you can see this equation 2, ये जो हमारे पास equation 2 है, ये 2 का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी, दिस वन. दिस इज सेकंड डेरिवेटिव. ठीक है, उसी तरह से हम जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास राइट साइड पे यू कैन सी इट्स मैनी टर्म्स, ये हमारे पास आते जाएंगे एंड सो ऑन अप टू, ये चलता जाएगा. एंड सिमिलरली अभी हमने देखा, इफ वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे सेकंड डेरिवेटिव है और आपको कहा जाता है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव at any point x is equal to x naught, तो हम क्या करेंगे, we will just substitute in equation 3 x is equal to x naught, x prime जो है हम वो उसको पुट कर दें. ठीक है, so here you can see we have two equations, first derivative, second derivative, और ये first derivative हमारे पास equation 2, you can note it.
एंड द सेकंड डेरिवेटिव इसी से हमने निकाला, दैट इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 की फॉर्म में हमारे पास है। वी कैन आल्सो फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमें थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना होगा तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Now after this we have an example to understand about this theory. Find the first and second derivative at x is equal to 1.6. As you can see here, and the particular point is 1.6. For the function represented by the following table of data, we have given the values of x, we given the values of f of x. Okay, so first of all we need to check this data is equidistance, equispaced data, or this is unequal data. ठीक है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि x के जो कंसेक्टिव वैल्यूज उनमें डिफरेंस चेक करेंगे। एज यू कैन सी हेयर फ्रॉम 1.5 -1 करें तो 0.5 आ रहा है, 2 - 1.5 करें तो ये भी 0.5 आ रहा है, बट हेयर लास्ट वैल्यू में 3 - 2 करें तो 1 आता है। सो दिस इज नॉट इक्विस्पेस्ड। So what we need to apply? We need to construct divided difference table. ठीक है, हम divided difference table को construct करेंगे और उसी से फिर हम क्या है अपनी तमाम के तमाम values को find out करके जो first और second derivative है इसके अंदर हम values को put करते हैं। So the data is not equispaced. We use the divided difference table to find the derivatives. अभी हम क्या करेंगे, divided difference table यहाँ पे construct करेंगे, and we have already learned in the previous lectures किस तरह से हम divided difference table को construct करते हैं। Here you can see again हमने इसको table को construct किया है। ये जो लास्ट लेक्चर्स हमने divided difference जो था डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना, उसमें हमने ये सीखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यूज को लिखेंगे, एज यू कैन सी फर्स्ट कॉलम, देन f ऑफ x, क्लियर। आफ्टर दैट हमने वहां पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकाला था। ठीक है, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, दिस वन। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, वो हमने फाइंड आउट किया जैसे कि हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा हुआ है। एंड दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, और ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं। ओके, दिस इज वेरी इजी। ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यू कैन सी आल्सो सी द प्रीवियस लेक्चर्स। सो आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस टेबल we need to substitute all the values in the given formula. अब क्या फार्मूला क्या है हमारे पास, एज यू कैन सी अभी हमने देखा फार्मूला जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, substituting x is equal to 1.6 इन द फार्मूला। यही फार्मूला था जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है, जो हमने जो पॉलिनोमियल्स था वहां से हमने इसको फाइंड आउट किया। सो इन दिस फार्मूला यू कैन सी वी नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेबल पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं और कैसे हम इसमें पुट करेंगे। सो as you can see here, what is f of x naught x1। ठीक है, इसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास दिस इज दिस वन, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में हमारे पास वैल्यू होती है, वो हमने पुट कर दी एज यू कैन सी हेयर। सिमिलरली हमने क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में x माइनस एक्स नॉट। ओके, वी नो डैट व्हाट इज दिस, दिस इज x नॉट, this is x naught, what is this, this is x1, this value is x1, this is x2 and this is x3। हमारे पास x3 की वैल्यू। so x is 1.6 and what is x naught, now we can see x naught is 1, तो हमने 1 पुट कर दिया, प्लस एज इट इज what is x, x तो हमारा वही जो पर्टिकुलर वैल्यू थी हमारी 1.6 उसको पुट कर देंगे, माइनस x1, what is x1 1.5, वो हमने पुट कर दिया। आफ्टर दैट हम देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज दिस, दीज आर एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2। जो फर्स्ट वाली डिफरेंस है उसमें तो x नॉट x1 तक है, इट्स मीन कि ये वैल्यू हम लेंगे सेकंड जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस है उसमें से हमारी वैल्यू आ जाएगी दिस वन, प्लस दिस प्लस एज इट इज x minus x1 x minus x2। ओके, so this is x minus x1, this is x minus x2 plus x minus x naught x minus x2
उसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी हुई है, प्लस एज इट इज एज यू कैन सी, ठीक है, एंड x माइनस x नॉट x माइनस x1 इनकी वैल्यूज पुट करें, and at the end you can see that we have f of x naught, x1, x2 and x3. So what is this? This is third divided difference. And what is third divided difference? We have the value 0.061157, वो हमने इसमें put कर दी. So by table, by constructing divided difference table, we can easily find all the values. हमने वो तमाम के तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है. अब हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें. सो यू कैन चेक बाय योरसेल्फ. दिस इज इक्वल टू 0.63258. दिस इज द फर्स्ट derivative at point x is equal to 1.6. And we know that what we need to find more, the second derivative. ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव भी है, वो भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग द फार्मूला. फार्मूला जो हमारे पास है उसी में दोबारा से फिर वैल्यूज को पुट करेंगे. सो अगेन substituting x is equal to 1.6 in the formula. This is the second derivative formula. ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी फार्मूला जो अभी हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट किया था, 2 टाइम्स f of x naught x1 x2 plus 2 times x minus x naught x minus x1 plus x minus x2 into f of x naught x1 x2 and x3. okay, so this is, ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है. ये सेकंड डेरिवेटिव की हमें वैल्यू चाहिए, एंड दिस इज थर्ड डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो हमारे पास था उसकी वैल्यू है, और दिस इज द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जो टेबल में वैल्यूज है हम इनको पुट करेंगे. और इसी तरह से x जो हमारे पास 1.6 ही रहेगा, x नॉट भी, और x1 और x2 हमने अभी वैल्यूज जो टेबल में इसी तरह से हमने पुट की थी, जो लिखी हुई है, हम वैल्यूज को वहां से लेंगे. और जब तमाम वैल्यूज को आप पुट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इज -0.43447. so this is the second derivative. okay, so you can see here, we observe that by using these derivatives we can easily find the first derivative and second derivative by using divided difference table. So after this, there is a question for you to solve this question, to learn more about this. Then the question is given the following data. अब आप देख सकते हैं इस डेटा को. In this data we need to find the first derivative at x is equal to 6. हमें x की 6 वैल्यू पे हमें ये डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव. एंड व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x? यू कैन सी दिस इज, these values are not equidistant. you can see easily, यहाँ पे तो 2 आता है, 2 माइनस 0 करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाता है. सो these values are not equidistant. तो अभी हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल आप ड्रॉ करेंगे, और डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल ड्रॉ करने के बाद जो डेरिवेटिव्स अभी मैंने जो आपको बताए हैं, अभी जो हमने फाइंड आउट किए हैं डेरिवेटिव्स, मैं आपको फिर से एक बार ऊपर दिखा देता हूँ. उन्हीं के अंदर आप वैल्यूज को पुट करेंगे इन दिस डेरिवेटिव. ये जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया हुआ है, इसी में आप वैल्यूज को पुट करेंगे, डिवाइड डिफरेंस का टेबल ड्रॉ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा.